طیارہ لیز پہ لیا گیا تھا اور اس کے مالک کے اور پی آئی اے کے درمیان ایک تنازع چل رہا تھا جو عدالت میں زیر سماعت تھا، ابھی حل طلب تھا۔ جو مالک ہے انہوں نے برطانیہ میں ایک مقدمہ کیا ہوا تھا عدالت، اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے ملیشیا کی حکومت سے درخواست کی، کیونکہ ملیشیا اور برطانیہ کے درمیان میوچل لیگل اسسٹنس کا معاہدہ ہے کہ یہ برطانیہ کے کورٹ نے کہا ہے آپ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ تو اس پر جب طیارہ وہاں لینڈ ہوا تو ملیشیا کے کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہوں نے اس کو امپاؤنڈ کیا۔ اب وہ ہمارے جو پی آئی اے کے حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک وزارت خارجہ کا تعلق ہے، جب ہمارے علم میں یہ بات آئی، ہم نے فی الفور ہماری ایمبیسڈر نے، جو ہماری وہاں سفیر ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ، انہوں نے فوری طور پر وہاں جو ہمارے مسافر تھے ان کی رہائش کا، ان کے کھانے کا اور ان کو پاکستان منتقل کرنے کا بندوبست کیا، اور ہم نے ایمریٹس کے ذریعے ان کو ری بک کیا اور ان کو پاکستان پہنچایا۔ تو میں انفیکٹ جو ہمارے وہاں سفارتکار ہیں، ہماری جو ایمبیسڈر ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بر وقت لوگوں کی وہاں مدد کی جو ان کے فرائض میں شامل ہے۔ تو ہماری خواہش تھی کہ جو پاکستانی مسافر ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بیچارے ٹکٹ لے کے بیٹھنے آئے تھے، گھر جانے کو آئے تھے، تو ان کے علم میں تو نہیں تھا کہ پی آئی اے کا یا جو اس کا مالک ہے طیارے کا، اس میں یہ تنازع چل رہا ہے۔ تو ان کی دقت کو کم کرنے میں اور اس میں آسانی پیدا کرنے میں جو ہمارے سفارت خانے نے کردار ادا کیا، میں اس سے مطمئن ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا، پی ڈی ایم مہنگائی پر سیاست کر رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سر۔ مہنگائی ویسے بھی مہنگائی جو ہے وہ 10-15 دن کے لیے تو تھوڑا استحکام آیا، لیکن اس کے باوجود اب پھر دوبارہ چینی اور گھی اور دیگر جو اشیاء ہیں پھر وہ جمپ کر رری ہیں۔ اس کو کنٹرول کیوں نہیں یہ کیا جا رہا ہے؟ مہنگائی کے اور قیمتوں کے بڑھنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک فیکٹر نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت اپنی پالیسی کے ذریعے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ چینی کی قیمت آپ نے ذکر کیا بڑھی، آٹے کی قیمت بڑھی، تو حکومت نے اس کا تدارک کرنے کے لیے امپورٹ کی، باہر سے چینی منگوائی، باہر سے گندم منگائی، تاکہ جو سپلائی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہو اور قیمتیں نیچے آئیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو منافع تو حق ہے، آپ بنائیں، منافع کوئی جرم نہیں ہے، جو کاروبار کرتا ہے نقصان کے لیے تو نہیں کرتا، لیکن جائز منافع۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ راتوں رات ہم نہیں کرتے اور وہ حکومت کی پریشانیوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ حکومت اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں اس کا نوٹس لے بھی رہی ہیں، اقدامات انہوں نے لیے بھی ہیں اور آئندہ بھی لیں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ سر یہی بات کہ منافع خور جو ہے، جو ذخیرہ اندوز جو ہیں، کیا وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، یا مافیات جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ یہ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے حکومت حد الوسع کوشش کر رہی ہے، ان کی ایسوسی ایشن سے بھی رابطہ کیا ہے، ان کی تنظیموں سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ تعاون کریں اور ایکشن بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود عناصر ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے قوانین موجود ہیں، ہمارے ہاں قتل کے جرم کی سزا موت ہے، اب اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن
आपके ख्याल में कत्ल नहीं होते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है, प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, सज़ाएं भी दी जाती हैं। तो ये एक मुसलसल एक जद्दोजहद है जो जारी रहती है और रहेगी। क्रशिंग सीजन शुरू है, चीनी पहले भी महंगी हुई, इस वक्त भी सर 95 से 100 रुपए किलो ओपन मार्केट मिली भगत है, गन्ना महंगा खरीदा जा रहा है। मंगवाई गई है, तो बाहर से भी मंगवाने के बावजूद सूरत हाल ये है कि चीनी सस्ती नहीं हो रही है और क्रशिंग सीजन भी शुरू है। इस पे सर कोई ठोस हिकमत अमली की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि? जी, इस पे ठोस हिकमत अमली बिल्कुल अपनाई गई और उस ठोस हिकमत अमली की बुनियाद पर चीनी जो 100-110 को छू रही थी वो नीचे होकर 80-85 पर आई। अब फिर हम देख रहे हैं कि उसमें ट्रेंड में इजाफा हुआ है। आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसका नोटिस लिया गया है और हमारे जो मिनिस्ट्री है कंसर्न हमाद अदर साहब जो मुतलका वज़ीर हैं वो उसको देख रहे हैं और इसका भी हल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। शाह साहब, मौलाना को जो है वो पिंडी से चाय की ऑफर होगी है, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, तो आप लोग क्या ऑफर करने जा रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं जो है मौलाना साहब। मैं तो इस पर क्या कमेंट करूँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि एहतजाज आप ज़रूर कीजिए, करना चाहते हैं तो, लेकिन जमहूरी अंदाज में कीजिए और एहतजाज की आड़ में आप कानून शिकरी मत कीजिए, कानून को हाथ में न दीजिए। अब आपने कहा अब लेटेस्ट जो उनका एहतजाज है वो 19 तारीख को है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना चाह रहे हैं और एहतजाज करना चाह रहे हैं जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का केस है उसके बारे में। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तफसीलात दी हैं कि डोनेशंस कहाँ से आई, किसने दी और तकरीबन 41,000 के लगभग हमने लोग उनके नाम और उनकी निशानदेही की है। हम बाकायदगी से कानून के दायरे के अंदर रहते हुए फंड रेजिंग करते हैं और कर रहे हैं और हमारे जितने कवानीन हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर उनका एहतराम करते हैं। हम हर साल रिकग्नाइज्ड ऑडिट फर्म से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। अब हमें तो जो हमसे सवाल किए गए हैं हम उनसे इनकार नहीं करते, हम उनका जवाब देंगे, दिया भी है और देंगे। मेरा सवाल ये है कि कल 18 तारीख है, ठीक है, चलो परसों 18 तारीख है, 18 तारीख को पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को भी तो बुलाया गया है। कभी आप भी बता दें आपके हिसाब कहाँ से है, आपकी फंड रेजिंग कहाँ से हुई, आप भी अपना, जैसे पीटीआई ने रिकॉर्ड पेश किया है आप भी पेश कर दें। तो 18 तारीख को अब मैं देखता हूं कि वो उनकी क़यादत वहां जाती है कि नहीं जाती और क्या कहती है। देखिए, एतराज़ात बड़े आसान होते हैं, जवाब देना इतना आसान नहीं होता। हम पर एतराज़ किया गया, हमने जवाब दिया, देखते हैं। आज टेस्ट ये है, अगर 18 तारीख को पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहां पेश होती है, खुद लीडरशिप वहां पेश होती है और मुकम्मल अपना हिसाब देती है, तो फिर तो 19 तारीख को वो एहतजाज करते हुए चलो हमें कोई उसका नुक्ता समझ आएगा। फैसला तो अदालत इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। लेकिन अगर 18 को वो पेश ही नहीं होते, अपना हिसाब ही नहीं देते, तो फिर पाकिस्तान के लोग इतने सादा नहीं हैं कि वो आपके एहतजाज के पीछे जो हकीकत है उसको ना पहचान पाएं कि इस एहतजाज की वजह क्या है। ये एहतजाज जो है ये नजात का एक ज़रिया हो सकता है, एहतसाब नहीं। ये बताइए कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी एक बनाई गई है, क्या उस कमेटी को मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो बैठ के मामलात को तय करे, क्योंकि मुल्क इस वक्त शदीद तरीन बहरानों में है, क्या उसको कमेटी को ये अख्तियारात हासिल हैं? पहले क्या अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठने के लिए तैयार है?
देखिए ना, मज़ाकरात तो तब भी होते हैं ना भाईजान कि अगर आप दोनों साइड्स आमने सामने बैठे और फिर आप तय करें कि उसके हदूद व क़यूद क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा, कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा। जी, मैं तो समझता हूँ कि अभी ऑपोजिशन का तो मुझे तो ऐसा कोई वहाँ से कोई ऐसा अंदिया दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा इशारा मुझे नहीं मिला कि वो मेज़ पर बैठकर बात करने को तैयार है। अगर है तो अपना एजेंडा पेश करें, क्या है देख लिया जाएगा। सर, अच्छा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर हालिया वाक़या बड़ा अफसोसनाक हुआ, उस पर सर कोई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, बड़ा दर्दनाक वाक़या था और उस पर हमारे इल्म में है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो कुव्वतें काम कर रही हैं वो आपके इल्म में है और इसके बारे में वज़ीर आज़म के बयानात भी आ चुके हैं। मैं भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, एक डॉसियर पेश कर चुका हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर कर चुका हूँ और उस डॉसियर में बताया गया है शवाहिद के साथ कि हिंदुस्तान क्या मनफी किरदार अदा कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए, हमारे मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना फसादात को हवा देने के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन कायदीन का जिन्होंने इसके हल करने में अपना किरदार अदा किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो लवाहिकीन थे, शहदा के जो वरसा थे, जिन्होंने बात की हकीकत को समझा और वो तो नहीं चाहते थे कि इतना तूल दिया जाए, वो तो चाहते थे कि शरह के मुताबिक तदफीन हो जाए और यकीनन जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो बेनकाब हों और हम भी चाहते हैं वो बेनकाब हों और हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म ने उनको एतमाद दिलवाया है, आर्मी चीफ भी वहाँ गए हैं कोयटा में और उनके बुज़ुर्गों से, वालिदैन से, अजीज़ व अक़ारिब से मिले हैं और उनको ये बिल्कुल उनको बावर कराया इसमें हम मिल के साहने को भी एक सियासी रंग देना चाह रहे थे। बदकिस्मती से हर चीज़ को सियासत के लिए इस्तेमाल जो लोग करते हैं ये अच्छा तरीका नहीं है और इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। बहरहाल लोगों ने किया और अल्लाह ने किया, वो मसला हल हुआ और इंशाअल्लाह वो लोग बेनकाब होंगे। 14 साल बाद आज साउथ अफ्रीका की टीम दोबारा पाकिस्तान आई है। 14 साल बाद आज जनूबी अफ्रीका में जो जनूबी अफ्रीका की बहुत बड़ी टीम, पहले बांग्लादेश भी आई, श्रीलंका भी आ चुके हैं, तो अब एक बड़ी टीम आई है सर, उस बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है यार, इससे दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बिलअमूम लोगों को एतमाद है और लोग समझते हैं कि हालात यहाँ बेहतर हुए हैं और इसमें कोई शक ही नहीं कि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं अफसोसनाक, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑन द होल सिक्योरिटी सिचुएशन में एक नुमायाँ बेहतरी आई है, उससे लोगों का एतमाद बढ़ा है और स्पोर्टिंग एक्टिविटी बहाल हुई है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा, हिंदुस्तान में जो है बाबरी मस्जिद शहीद की गई, लेकिन यहाँ मंदिर दोबारा तामीर किए जा रहे हैं, कोर्ट का भी डायरेक्शन है, इसमें हुकूमत का अपना क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, देखिए, हमारा आइन, हमारा मज़हब जो कहता है कि हमने जो हमारी दीगर अक़लियतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी जो इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिर की शक्ल में हो, चाहे गुरुद्वारे की शक्ल में हो, चाहे गिरजाघर की शक्ल में हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं। हमारा आइन कहता है, हमारा कानून कहता है, हमारी मजहबी अक़दार कहती हैं, ठीक, और हम कर रहे हैं। जिन्होंने ये किया वो नामुनासिब हरकत थी और हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया और हुकूमत ने भी नोटिस लिया और उसको दोबारा तामीर इंशाअल्लाह हम करेंगे। हम तवक्को करते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं यही रवैया अपनाया जाए हिंदुस्तान में, जो हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। अगर हम मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं तो दुनिया देखे कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ आपके सामने है। तो जब आप एक पॉजिटिव तरीके से
बिहेव करेंगे, एक पॉजिटिव तरीके से आइन और कानून और आइन के मुताबिक इक़दामात उठाएंगे, उससे इस हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत और उनकी पॉलिसीज़ और उनका चेहरा बेनकाब होगा और ये पाकिस्तान के हक में जाता है। सर वज़ीर सर, आज़म ये बताएं कि वज़ीर आज़म मुल्तान आ रहे हैं, मुल्तान में आप क्या समझते हैं कि वो एजेंडा क्या होगा सर, और उसमें क्या क्या सर मुल्तान के लिए वज़ीर आज़म करप्शन का केस चल रहा है, एंटी करप्शन में, वो अभी अपने ओहदे में बर्जमान है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि तरीके इंसाफ तो करप्शन से पाक की बात करती है, चेयरमैन बोर्ड मुल्तान। मेरे इल्म में नहीं है भैया, जो जी शमीम अख्तर नाम है चेयरमैन बोर्ड, तालीमी बोर्ड। मेरे इल्म में नहीं है भैया, होगा तो जो कानून है उसके मुताबिक काम होगा और होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कहता कि हम किसी पे कोई हमने पर्दा तो डालना नहीं है, लेकिन नाजायज़ भी किसी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए, हक़ाइक़ सामने आने सर चाहिए। वज़ीर आज़म मुल्तान आ रहे हैं, उस हवाले से ज़रा कोई जी बताएंगे? उनका अभी डेट तक आएंगे? अभी फाइनलाइज होना है, उनकी ख्वाहिश है आने की और हम उनको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अभी तय डेट हुई नहीं है, जैसी होगी मैं आपसे अर्ज़ करूंगा। एजेंडा सर क्या कोई होगा? मुल्तान के लिए पैकेज जो है वो सर आप कोशिश है, हमारी कोशिश है कि मुल्तान हो, जनूबी पंजाब हो, इसको इसका हक मिलना चाहिए और हम उनसे तवक्को करेंगे कि वो आए तो मुल्तान की दादरसी करें इंशाअल्लाह, और करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू, मेहरबानी।